So let's begin with our today's session, evening session. This is weekend live learning session conducted by me. My name is Bhavneet and I'm a full-time trader. And today we are going to have 1 hour lecture on understanding candlesticks and candlestick pattern. Now this is also possible since the complete lecture is going to be a little bit longer. So agar in any case at any point of time, if we find that we are running out of time, then we can continue the same lecture next Sunday also, right? हम इस lecture को अगले Sunday भी हम continue कर सकते हैं. So without wasting any time, let's begin with our understanding. Right. So, first of all, regarding me, my name is Bhavneet and I'm a derivatives trader and chief mentor at Elixir Learnings. I have got expertise in price action trading, market profile, volume profile, and order flow trading. I do most of the trading in indices, that is in Nifty options as well as Bank Nifty options. But many a times we also take the trading in, stock futures and stock options as well. Right. And we have got, Telegram. We have got presence on various social media platforms like Telegrams, Facebook, and Instagram, and we have trained number of students, and many of our students are making good, consistent profits in stock market now. Okay, so that's in case if you want to contact us, these are some of our links for the channel. First one is Elixir Learnings, that is our official channel available on Telegram, and you can search into our Telegram with the name of ELIXIRLEARNINGS, Elixir Learnings. And at any point of time, if you have got any query related to stock market, you can ask us anytime on our WhatsApp number. This is our official WhatsApp number, 8851469399. And you can also find our channels on Facebook with the name of Elixir Learning, YouTube with the name of Elixir Learnings, and our website name is elixirlearnings.com, and blogspot is elixirlearning.medium.com. Okay, now let's first understand, let's first begin with understanding candlesticks, right? Now जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टडी करते हैं, the basic element of understanding everything related to stock market or technical analysis that we do in stock market, the first and foremost thing is understanding prices, right? First and foremost thing is understanding prices and the movement of price. जब भी प्राइस का मूवमेंट ऊपर या नीचे होता है, जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि मार्केट में अभी हमें कहां पर बाय या सेल करना चाहिए, और उसी मूवमेंट ऑफ प्राइसेस की स्टडी को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, राइट? और यू कैन आल्सो से प्राइस एनालिसिस, और उसका सबसे बेसिक एलिमेंट है कैंडलस्टिक्स, राइट? सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर कैंडलस्टिक्स. कैंडलस्टिक्स आर नथिंग बट, अगर इन शॉर्ट अगर आपको कैंडलस्टिक्स का डेफिनेशन समझना है, तो कैंडलस्टिक्स आर नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग अस द मूवमेंट ऑफ प्राइसेस. किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम कोई भी चार्ट खोलते हैं, तो उसके अंदर हमें मूवमेंट ऑफ प्राइसेस दिखाई देती है. उस मूवमेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कैंडलस्टिक. लेट्स से अगर हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट देखना है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक्स, then we can open its 5 minute chart and we can see what were the opening prices, what were the lowest prices within that particular 5 minute time frame, what was the highest price, what was the lowest price. ये सारे prices को हम देख सकते हैं. और कोई भी हम अगर chart खोलेंगे, let me just do one thing. Let me just open simple chart. Let's just open एक बहुत ही common website है. ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी हम चार्ट्स देख सकते हैं. यहाँ पर ये देखिए, अगर आप देखेंगे कोई भी चार्ट को, तो यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में दिख रहा है, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं. टॉप में अगर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें कैंडल्स दिखाई दे रहा है. इस कैंडल्स को क्लिक करते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कैन सी. इन चार्ट्स को, चाहे इन मूवमेंट ऑफ प्राइसेस को, चाहे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में खोलें या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में, ये हमें ये चार्ट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक सिंगल कैंडल हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि 5 मिनट के अंदर किसी भी प्राइस का ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या मूवमेंट हुआ था. दैट्स व्हाट these charts are representing us. So let's go back to the slide. So this is our slide. So yeah, here let's start understanding what are candlesticks. So candlesticks are representing us in any given time frame what were the movement of prices. अगर कोई भी कैंडल
ग्रीन कैंडल है, तो उस ग्रीन कैंडल के अंदर हमें क्या पता चलना है, कैसे पता चल सकता है? वो चार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट वाज द ओपन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, व्हाट वाज द हाईएस्ट प्राइस, व्हाट वाज द लोएस्ट प्राइस एंड व्हाट वाज द क्लोजिंग प्राइस। वो हम यहाँ पर ग्रीन कैंडल को देखने से हमें पता चल सकता है। जैसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर अगर हम ग्रीन कैंडल देखेंगे तो लोअर पोर्शन है इस कैंडल का, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, इट शोज अस द ओपनिंग प्राइस, highest plotted point is called as the high price, lowest plotted point is called as low price, and इस कैंडल की बॉडी का टॉप पार्ट बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग प्राइस विद इन दैट पर्टिकुलर 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। सो अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं और उसके अंदर हमें कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, तो उस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे लोएस्ट प्राइस, ओपनिंग प्राइस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस बॉडी पार्ट, right? Bottom of the body part will be representing opening price, and top part of the body part is called as closing price. Similarly, इन्हीं कैंडल सिक्स में अगर आप देखेंगे रेड कैंडल अगर फॉर्मेशन है तो हाई और लो वो तो सेम ही रहेगा, बट ओपन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड क्लोजिंग प्राइस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, राइट। इन कैंडल सिक्स के अंदर बेसिकली दो दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल बॉडी पार्ट। इतना जो पोर्शन है जो आपको कैंडल की तरह दिखाई देता है इसे हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, और इस कैंडल के ऊपर जितना भी शैडो पोर्शन आपको दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं शैडो पार्ट या फिर लोअर विक, लोअर विक या अपर विक, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी हैव शोन हियर। जैसे इस कैंडल में, ग्रीन कैंडल में जो अपर पार्ट है इसको या तो आप शैडो पार्ट बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं अपर विक। सिमिलरली इस कैंडल स्टिक्स के नीचे जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसे हम या तो हम शैडो पार्ट बोल सकते हैं या फिर हम उसे बोल सकते हैं लोअर विक। सिमिलरली रेड कैंडल में भी हमें ऐसा ही चीजें दिखाई देती हैं। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या होता है कैंडल स्टिक, क्या इतना पार्ट आप सब लोगों को क्लियर है? अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो गाइस? What are candlesticks? Candlesticks are showing us four important information: open, high, low and close. Okay. So अभी हमने इतना समझा है कैंडलस्टिक्स होती क्या है, उसके बाद अब हम समझेंगे अलग अलग टाइप की कैंडलस्टिक्स, राइट। पहला जो अलग अलग टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं, ये कैंडलस्टिक्स भी हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज भी अलग अलग टाइप की फॉर्मेशन हमें दिखाई देती हैं इनमें। उन फॉर्मेशन को ही हम आज स्टडी करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। सबसे पहला टाइप जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मैरोबूजो कैंडल, राइट। मैरोबूजो कैंडल होती क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। सो मैरोबूजो कैंडल, अगर शॉर्ट डेफिनेशन अगर आपको मैरोबूजो कैंडल की समझनी है तो वो कैंडल होती है जिसमें ओपनिंग प्राइस होता है लोएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस होता है हाईएस्ट प्राइस। यानी कि मैरोबूजो कैंडल के अंदर कोई भी आपको अपर शैडो या लोअर शैडो नहीं दिखाई देगी, उसे हम बोलते हैं मैरोबूजो कैंडल। इस कैंडल, ऐसी टाइप की कैंडल्स आपको 5 मिनट चार्ट में भी मिल सकती हैं, 15 मिनट चार्ट्स में भी मिल सकती है, 30 मिनट चार्ट में भी, 1 आवर चार्ट में भी, लेकिन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस इन कैंडल की मिलती है आपको daily charts mein. The highest significance that you get in these candles, whenever you see these candles, the highest significance, they are carried in basically daily charts, right? So this one you can write down as a point that Marubozu candles are very important candles. They have got really big significance when it comes to daily charts, right? Why they are carrying very important significance? Because if we read the chart here, अगर हम चार्ट को यहाँ से पढ़ेंगे तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है, जहां से प्राइस ट्रेड करने के लिए आज शुरुआत हुई थी उस प्राइस के नीचे एक बार भी ऑक्शन होने की कोशिश नहीं हुई है। प्राइस खुलते ही सीधा स्ट्रेट अवे ऊपर चलता रहा। उसके बाद भले ही जितना प्राइस में अप और डाउन मूवमेंट चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली डे एंड पर जब प्राइस ने क्लोजिंग दी है तो उसने अपने डे के हाईएस्ट प्राइस पर ही क्लोजिंग दी है। सिमिलरली, व्हेन इट कम्स टू bearish candle, a bearish candle has also got the opening price as the highest price. That means prices, the moment they started trading right at the opening bell,
the prices were never able to go above the opening price. They just simply kept on going down and down and down only. Ultimately, by day end, they were able to close exactly at the lowest price of the day. So this carries the very important significance. If what is the significance is the conviction of buyers and sellers in these candles. Whenever we find out these candles, we can say definitely for sure on daily charts that the buyers were in complete control on this particular day, which was having Marubozu candle, or sellers were having complete control on this particular day, which was having Marubozu candle, bearish candle. Okay, this thing is getting clear to everyone now. ये चीज आप लोगों को clear हो रही है? Bullish Marubozu and bearish Marubozu. This is very important point on daily charts for all of you to understand that Marubozu candles carry very high significance in terms of conviction of buyers and sellers. Buyers or sellers का conviction हमें बता रहे हैं, especially on the daily chart, that prices, the moment they opened, they made the opening price was the lowest price and closing price was the highest price. Similarly, in case of bearish Marubozu candle, opening price was the highest price and closing price was the lowest price. That means prices were never able to break the opening or closing range with a very high, you know they were not able to make any kind of shadow part in the candle. Okay, if you want to scan these type of candles, you can definitely do the scanning. आज के lecture में खत्म होने के time पर, if you all insist on creating a scanner for finding out Marubozu candle on daily chart, I can create and teach you all how to find out Marubozu candles also. Now, one last point that you also have to remember for Marubozu candles is that is, whenever you see a Marubozu candle, it is also equally important how big the candles are. ये एक और बहुत ज्यादा important point है आपको याद रखने के लिए, ये candles कितनी ज्यादा बड़ी candle है. अगर ये Marubozu candle, if this Marubozu candle is carrying, the high and low range of this Marubozu candle is above the average daily volume, above average daily range, sorry, daily range, then you can say that is absolute control of buyer's candle, not any other Marubozu candle. The candle which is having high low range greater than the average daily range of any particular stock, then that candle is definitely a very high convictional candle, which is showing us conviction of big buyers or big sellers sitting within that particular stock. This point you have all noted down. क्या आप ये point note down कर रहे हैं guys? एवरेज डेली रेंज से ज्यादा रेंज जिस भी मैरोबुजो कैंडल की होगी, वो कैंडल अपनी कन्विक्शन दिखा रही है बायर्स या सेलर्स की. दैट मींस if the candle having daily range greater than the average daily range, that candle is carrying very high conviction among the buyers or seller in making the prices move up or down. और उस कैंडल के हाई और लो को अगर हम कभी भी मार्क करेंगे, whenever the prices will be retesting the same area one more time, that area will highly likely act as a demand zone. How do we get the average daily range? Another important question coming from Rahul Mishra. So Rahul ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे daily chart basically average daily range अगर हमें find out करनी है तो कैसे find out कर सकते हैं? Answer is very simple sir. What you can do, आप पिछले 21 ट्रेडिंग डे का 21 डेज के हाई और लो को मार्क करिए. उसी पर्टिकुलर स्टॉक का पिछले 21 दिन के हाई और लो को मार्क करिए और आपको जो भी हाई और लो डेली के रेंज आपको दिखाई देगी, उस डेटा हाई माइनस लो डेटा को आप फाइंड आउट करिए. फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक है, उसका पहले दिन था 50 पॉइंट्स का हाई माइनस लो रेंज. सिमिलरली सेकंड डे था उसका 100 पॉइंट्स, अगले दिन था उसका अगेन 50 पॉइंट, and for maximum number of days it was like anywhere around 50 50 50 डेटा सेट आपके पास एक रेडी हो जाएगा 21 दिन का. वो सारे के सारे हाई माइनस लो रेंज को आप डिवाइड करिए 21 से, टोटल करके डिवाइड करिए 21 से, यू विल गेट द एवरेज डेली रेंज.
ये पार्ट आपको क्लियर हो रहा है? लेट मी जस्ट राइट इट डाउन सेपरेटली सो दैट आपको समझ में आ जाए. यू कैन राइट इट डाउन. So what you have to do for finding out average daily range, what you have to do, number one, calculate high minus low of high minus low range of past 21 days. Number two, add all the numbers. Number three, divide the sum by 21 number. And there you go, you will get high average daily range, right? ये आपके पास एवरेज डेली रेंज आ जाएगी. लेट्स से दैट दिस एवरेज डेली रेंज वाज 55 पॉइंट्स, लेट्स से. तो उस केस में कोई भी स्टॉक आपको दिखाई देता है जहां पर ये 70 पॉइंट्स की लेट्स से ये रेंज है, कैन वी से दिस इज डेफिनेटली अ वेरी हाई कन्विक्शनल स्टॉक. इसमें अगले दिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है अपसाइड मूवमेंट देने की. अगर उसका एवरेज डेली रेंज आता है हमारे पास 50 पॉइंट्स का या 55 पॉइंट्स का, और इस स्टॉक में आज के दिन Marubozu कैंडल बना है, and this Marubozu candle is having high minus low range is 70 points, can we say definitely this is a very high convictional candle, and possibility for this type of candle for this possibility for the stock to move up and up in the next coming days is very high. Can we say that or not, guys? राइट. और एक और काम कर देते हैं यहां पर, आपका काम और थोड़ा और आसान कर देते हैं हम लोग. लेट्स जस्ट सिंपली क्रिएट अ स्कैनर, charting, free to create. What you can do, just go and create a scan. I'll just say that stock passing all the conditions in let's say futures segment. यहां पर हम लिख देते हैं that is open, latest open is equal to latest opening price is equal to lowest price, and open price and closing price is equal to highest price, right? और इसको अगर हम रन करेंगे, फ्यूचर्स और फ्यूचर सेगमेंट में हमें कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं निकल कर आया है. लेट मी जस्ट रन दिस इन stocks which are basically available in cash segment. कैश सेगमेंट में हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स निकल कर आए हैं. उसमें से हम एक काम करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं, तो हाईएस्ट वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हमें यहाँ पर दिख जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम था. सो here we go, we have got some stocks. इनको अगर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, AJR Infra Tolling Limited, then we have got Trident. इन स्टॉक्स को चाहो तो आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं. लेट मी जस्ट डू वन थिंग, ट्राइडेंट एक बार खोलकर देखते हैं. बहुत ही अच्छी बात है, यहीं से खोल के देख लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड. और इधर ये RSI को डिलीट करते हैं, अपर ओवरलेज में मूविंग एवरेजेस को डिलीट करते हैं, और यहाँ पर 6 मंथ्स का डेली चार्ट को अपडेट करते हैं. ओके, देयर यू गो, वी हैव गॉट द स्टॉक नाउ which has got the high low range. Basically last trading session में जिसका opening price was the lowest price and highest price was the closing price, right? ये हमारे पास यहाँ से स्टॉक निकल कर आ गया. सिमिलरली ट्राइडेंट के अलावा अगर और भी स्टॉक को अगर आपको देखना है यहाँ पर,
I can keep on, opening. Reliance Home Finance Limited आ रहा है हमारे पास, then we have got उत्तम गालवा, Syntex Plastic, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें वो स्टॉक्स नहीं चाहिए जो सर्किट टू सर्किट मूवमेंट करते हैं, सो वी कैन डिलीट दिस वन। AJR इंफ्रा को यहाँ से हटा सकते हैं। सिमिलरली श्री नायक, ये भी स्टॉक ऐसा है, 2 रुपए का पेनी स्टॉक, देन वी कैन ऑल्सो रिमूव दिस स्टॉक ऑल्सो। एंड विकास प्रॉपर्टी को भी यहाँ से हटा सकते हैं। हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिसमें एक्चुअली वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, पहली चीज। दूसरी बात, वो पेनी स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात वो ये है कि उसमें सर्किट टू सर्किट मूवमेंट होकर मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, लाइक द वे HCL इंफो सिस्टम्स में हमें जैसे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लॉयड है, लॉयड के अंदर भी देखिए सर्किट टू सर्किट मूवमेंट्स होती हैं, इसको आप हटा सकते हैं। देन वी हैव गॉट RHFL, रिलायंस होम फाइनेंस, इसको भी हटा सकते हैं। कोई ऐसा स्टॉक यहाँ पर, ऑलराइट, सो ये एक स्टॉक दिखाई दे रहा है अनंत राज लिमिटेड, जिसमें पिछले काफी दिनों से स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी सर्किट टू सर्किट टाइप की मूवमेंट नहीं है, इनफैक्ट अच्छी ट्रेडिंग होती है इसमें, राइट। सो इस स्टॉक को हम खोल कर देख लेंगे। ये एक स्टॉक हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ गया है। इसके अलावा विकास को भी यहाँ से हटा सकते हैं, देन देर आर सो मेनी स्टॉक्स, उत्तम गालवा भी हटा सकते हैं, सिंटेक्स भी हटा सकते हैं, एंड सो एन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर हमारे पास मेजरली जो भी स्टॉक्स निकल कर आ रहे हैं वो वही स्टॉक्स निकल कर आ रहे हैं जिसमें बेसिकली ओपनिंग कंडीशंस तो मीट हो रही हैं, लेकिन उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, राइट। पहली चीज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, दूसरी चीज सर्किट टू सर्किट मूवमेंट होती है या फिर मैनिपुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन डू द स्कैनिंग ऑल्सो। डे एंड पर अगर आपको कोई भी स्टॉक में मैरोबुजो कैंडल ढूंढनी है, सिमिलरली चाहो तो आप इसमें इसी स्क्रीनर के अंदर आप चाहो तो बियरिश कंडीशन भी डाल सकते हैं, बुलिश कंडीशन भी डाल सकते हैं। इस टाइप से चार्टिंग इज अ वेरी गुड स्क्रीनर, जिसमें आप डे एंड पर EOD में फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन डू ऑल द स्कैनिंग यू वांट फॉर एनी पर्टिकुलर स्टॉक। किसी भी कंडीशन को आप मीट करवाकर यहाँ पर चाहें तो अपने लिए एक अच्छा सा स्क्रीनर बना सकते हैं, राइट। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। Now let's come back to the topic, that is Marubozu candle। Marubozu candle में जो आपको मैंने बताना था, I hope you have also understood what is Marubozu candle। and इसमें हर कोई कैंडल, इनफैक्ट there can be many candles, ऐसी भी कैंडल हो सकती हैं जिसकी रेंज बहुत छोटी रेंज वाली Marubozu कैंडल बने, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं कैरी करती है। हमें बड़ी रेंज की Marubozu कैंडल चाहिए अगर हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि कन्विक्शन है उस पर्टिकुलर स्टॉक में बायर्स का या नहीं है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक इज कॉल्ड एज डोजी, राइट। अगली कैंडलस्टिक्स जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम बोलते हैं डोजी। नाउ डोजी एक इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कोई कन्विक्शन नहीं है आज ऊपर या नीचे, डाउन अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट में मार्केट पार्टिसिपेंट का कोई भी कन्विक्शन नहीं है। दैट्स व्हाट डोजी टेल्स अस। डोजी दिखती कैसी है, डोजी की प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। डोजी के अंदर एक आपको खास चीज देखने को मिलेगी, या तो उसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इज ऑलमोस्ट इक्वल, और opening price and closing price is very much near to it, राइट। या तो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत ही एकदम पास में मिलेगा, जिसकी वजह से कैंडल का जो बॉडी पार्ट है, वर्चुअली कोई बॉडी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है डोजी के केस में। और इसकी दूसरी चीज है हाई और लो, यानी कि जो शेडो पार्ट है वो कंबाइंड शेडो पार्ट आपको बॉडी पार्ट से बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल डोजी। This is also clear to everyone what is a doji। Doji candles are those candles which are indicating indecisiveness, जो हमें indecisiveness के बारे में बता रहे हैं, that is what we call doji। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देयर इज वर्चुअली नो बॉडी, रियल बॉडी। इन कैंडल्स के अंदर कोई भी रियल बॉडी नहीं होती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटली नॉन कन्विक्शनल मैनर में मूवमेंट करा है इस दिन। और जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कंप्लीटली नॉन कन्विक्शन होती है तो आने वाले दिनों में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, जिनमें आज के दिन अगर डोजी बनी है डेली चार्ट में, रिमेंबर दिस पार्ट, डेली चार्ट के कंसर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, अगर ये डेली चार्ट में हमारे डोजी बनी है
और इसका कोई भी रियल बॉडी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर बहुत छोटा सा रियल बॉडी है और शेडो पार्ट देखेंगे तो कंपैरेटिवली बड़े हैं, तो ये डोजी डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंस कैरी करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टाइप के स्टॉक्स में, कन्विक्शन आने का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज हम क्या याद रखनी है, दूसरी चीज हमें ये याद रखने की जरूरत है कि डोजी कैंडल्स के अंदर हाई और लो रेंज, जैसे हमने मैरोबुजो के अंदर बात करी थी कि वो मैरोबुजो कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हाई लो रेंज उस मैरोबुजो कैंडल की एवरेज डेली रेंज से 21 दिन की एवरेज डेली रेंज से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर डोजी के अंदर हमें ये याद रखना जरूरी है कि इसकी 21 एवरेज डेली रेंज से कम इसकी हाई लो रेंज होनी चाहिए, लेस देन एवरेज डेली रेंज। इसका जो हाई लो रेंज है वो कम होना चाहिए, 21 दिनों से कम, 21 दिनों के एवरेज हाई लो रेंज से कम होना चाहिए। दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। और जब ये इतना छोटा कैंडल आपको बनना हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली आपको उन स्टॉक्स में एक बड़ा मूवमेंट या मोमेंटम आने वाले दिनों में दिखाई देने का प्रोबेबिलिटी होगा। हो सकता है अगले दिन भी वो कैंडल में डोजी बने, उसके अगले दिन भी डोजी बने, 3 या 4 दिन तक हो सकता है वो नैरो रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग करे, लेकिन वो स्टॉक लाइफ टाइम तक उसी नैरो रेंज के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता। किसी एक दिन डेफिनेटली आपको उसमें आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर आपको हो सकता है अगले दिन ही बड़ा मूवमेंट दिखाई दे जाए, लेकिन उस स्टॉक को डेफिनेटली आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ऑनेस्टली सर, हाई लो रेंज बाउंस हो रहा है प्लीज। ओके, सो हाई लो रेंज कितने लोगों को समझ में आ रहा है गाइस, लेट मी नो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा फिर गाइड करता हूँ इस चीज में। मैंने यहाँ पर आपको गाइड करा ना हाई लो रेंज कैसे आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है एवरेज डेली रेंज? प्लीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट वन मोर टाइम। ऑल राइट, सो लेट मी डू वन थिंग। अभी यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली इस पीसी में सॉफ्टवेयर नहीं है अभी इस वक्त, अदरवाइज आई वुड हैव कैलकुलेटेड द एवरेज डेली रेंज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। बेसिकली आपको करना क्या होता है, हाई लो रेंज एवरेज डेली रेंज अगर आपको निकालनी है, दिस इज लाइक अ प्योर मैथमेटिक्स। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा इट इज लाइक अ नो ब्रेनर थिंग, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, पिछले 21 दिनों का हाई और लो डेटा फाइंड आउट करना पड़ता है। लेट मी डू वन थिंग, अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आई विल शो यू राइट नाउ। नहीं है यहाँ पर, या अगर कोई और सॉफ्टवेयर होता तो मैं आपको दिखा देता इस। दिस पीसी इज नॉट हैविंग एनी सॉफ्टवेयर राइट नाउ, बट लेट मी डू वन थिंग, लेट्स जस्ट क्रिएट अ डेटा सेट। डेटा सेट एक क्रिएट करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी स्टॉक का आप लेट्स जस्ट से हाई, और यहाँ पर हम बनाते हैं लो। लेट्स से एक स्टॉक है उसका, और मे बी हम एक काम करते हैं यहीं से डाउनलोड OHLC डेटा ऑफ रिलायंस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया डेली चार्ट का रिलायंस का। सो लेट्स डू दिस थिंग, यहाँ से ये पूरा डेटा सेट कॉपी कर लेते हैं। कितने दिनों का है, डजंट मैटर कितने दिनों का है। ये डेटा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड आई जस्ट सिंपली पेस्ट दिस डेटा हेयर। दिस इज फॉर रिलायंस। और ये डेटा मिला है हमें टोटल 20 दिनों का डेटा हमें दिखाई दिया है। इसमें से मैं वॉल्यूम हटा दूंगा एंड ओपन हटा दूंगा, सिर्फ हाई और लो का डेटा मुझे चाहिए। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर इक्वल टू
high minus low, and then enter. Properties format cell should be a number. ओके, सिमिलरली अब इसको ड्रॉप डाउन करके यहां तक ले आएंगे F2। ओके, हाई माइनस लो। ये हमारे पास बेसिकली पिछले 20 दिनों का डेटा निकल कर आया है। ये था 20 दिनों का हाई, 20 दिनों का लो और हर एक दिन का। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, सिर्फ हाई माइनस लो निकाला है हर एक दिन का। और इसको अब मैं यहाँ क्या करूंगा, टोटल इसका कर लूंगा बॉटम में, राइट। टोटल हमारे पास ये निकल कर आया है 884। और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 20। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट डाउन हियर इक्वल टू 884 डिवाइडेड बाय 20। सो हमारे पास एवरेज डेली रेंज निकल कर आ गई है, 20 दिनों की एवरेज डेली रेंज निकल कर आ गई है रिलायंस की 44। दिस इज एवरेज डेली रेंज। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। हाउ टू फाइंड आउट एवरेज डेली रेंज, व्हाट इट, crystal clear? So now we know that, average daily range is 44 points for Reliance for past 20 days। अगर कोई भी दिन रिलायंस में आपको सपोज एक ऐसा दिन दिखाई देता है which is having doji formation, and this doji is basically having high minus low range is only 30 points or let's say 35 points। जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोवेस्ट पॉइंट है उसका 35 पॉइंट्स का रेंज है। कैन वी से दैट इस स्टॉक में अभी कोई कन्विक्शन नहीं है मूवमेंट का, एंड दिस इज अ कंफर्म्ड डोजी, एंड दिस विल बी कैरिंग अ वेरी हाई इंपॉर्टेंस फॉर अस, एंड इन कमिंग डेज वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट ईदर ऑन बुल साइड और ऑन बियर साइड। कैन वी एक्सपेक्ट अ बिग मूवमेंट ऑन ईदर साइड? बिकॉज इसमें आज के दिन कन्विक्शन नहीं है, आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छा कन्विक्शनल मूवमेंट आने का पोटेंशियल होता है। दैट्स व्हाट डोजी टेल्स अस। ओके, क्लियर? ऑलराइट। और यही सेम चीज अगर मैं अप्लाई करता हूं मैरोबूजो में, यानी कि अगर रिलायंस में कोई भी दिन अगर मुझे दिखाई दिया है जिसमें ओपनिंग प्राइस इज द लोएस्ट प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस, एंड इनफैक्ट ये 44 पॉइंट की बजाय इसका जो हाई और लो रेंज है दैट इज बेसिकली लेट्स से 85 पॉइंट्स, then can I say that this is the day which is having very high conviction of buyers and market participants? They moved the prices up like anything, more than the average daily price also. Can we also expect a good bull movement the next day out of Reliance? This is what I wanted to explain to all of you, right? ये चीज आपको सिंपल सा एक्सप्लेन करना चाहता था मैरोबूजो कैंडल और दूसरा डोजी की वजह से, डोजी के बारे में। सर, व्हाई इज द रेंज ऑफ हाई एंड लो सो इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डोजी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज राहुल, हमें ये जानना जरूरी है। अगर ये डोजी, बहुत सारी टाइप की डोजी बन सकती है। डोजी ऐसी भी बन सकती है अगर कोई भी स्टॉक है उसका हाई और लो रेंज, लेट्स से जैसे रिलायंस का था 44 पॉइंट्स का था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा दिन मिले जिसमें डोजी आपका कुछ ऐसे बने जिसमें आपका हाई और लो रेंज जो आपका है वो हो सकता है 140 पॉइंट्स का भी हो सकता है, लेकिन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम। डोजी तो ये भी है, लेकिन इसमें आपको रेंज बहुत बड़ी मिल रही है। रेफरेंस पॉइंट्स आपके जो स्टॉप लॉसेस के हैं वो इतने ज्यादा बड़े बन रहे हैं कि ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है आपके लिए, स्पेशली बिकॉज इफ यू आर लुकिंग फॉर टेकिंग एनी ट्रेड देन यू नो दैट ऑलरेडी 70 पॉइंट्स ऊपर बनी हुई है रेंज, 70 पॉइंट नीचे बनी हुई है रेंज। इतने बड़े पॉइंट के साथ लॉस लेकर अगर आप काम करेंगे तो पोटेंशियल फॉर यू टू गेट बिगर एंड बिगर लॉसेस विल बी हायर। बट एट द सेम पॉइंट अगर आपको छोटी रेंज मिल रही है और इस छोटी रेंज के साथ आपको ब्रेकआउट दिखाई देता है वॉल्यूम के साथ नेक्स्ट डे, आप उसमें रिस्क लेंगे तो आपको हार्डली, इनफैक्ट अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं
हैविंग अ डेल्टा वैल्यू ऑफ ओनली 0.5, तो आपको इनफैक्ट हो सकता है मैक्सिमम 17 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़े अपने ऑप्शन में, जिससे आपका लॉस होने का पोटेंशियल कम होगा और आपको प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सोच समझ के ही राहुल ये बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे। डोजी बहुत बड़ी रेंज की भी डोजी बन सकती है, डोजी छोटी रेंज की भी बनती है, लेकिन हमारे लिए कौन सी डोजी ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करती है? हमारे लिए वो डोजी ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करती है जिसका रेंज एवरेज डेली रेंज से कम हो, या एवरेज डेली रेंज के आसपास ही हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट जितना कम होगा उतना ही बेटर है। I asked to confirm with utmost respect. अरे सर, you it is completely your आपका पूरा हक बनता है सर सवाल पूछने का है, मेरा पूरा जिम्मेदारी बनती है आपको जवाब देने की। नॉट अ प्रॉब्लम सर, यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस यू वांट। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स और डोजी मोरलेस आपको सिमिलर ही दिखने को मिलेंगी, लेकिन फर्क इसमें क्या होगा? फर्क इसमें ये होगा, स्पिनिंग टॉप्स और डोजी के केस में यू विल बी फाइंडिंग दैट देयर इज ऑल प्रैक्टिकली नो रियल बॉडी, कोई बॉडी नहीं होती है, बट यहाँ पर आपको एटलीस्ट थोड़ा बड़ा बॉडी आपको मिलेगा स्पिनिंग टॉप में। ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा आपको दिखता है, many a times you'll be finding it confusing, but do not get confused because spinning top also represents only one thing, that is indecisiveness. spinning top भी हमें indecisiveness के बारे में बताते हैं, यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में कोई भी कन्विक्शन नहीं था in making the prices go up or down in a trending manner, and spinning tops में आपको upper shadow and lower shadow भी almost equal milengi. They also carry almost equal upper and lower shadow, and they also have got body part visible completely. Whereas in case of dojis, you will be finding that there is virtually no body, real body almost नहीं होती, लेकिन spinning top के केस में आपको upper shadow lower shadow दोनों मिलेंगी, लेकिन साथ में body भी मिलेगी। Okay, this is also clear. I'm new to market, that's why I'm asking questions, sir. Please keep on asking, Rahul ji. जितने क्वेश्चन आपको पूछने पूछे सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ स्पिनिंग टॉप के अंदर भी सेम जो हमने डोजी के लिए हमने पॉइंट आपके लिए रखा था, दैट इज एवरेज डेली रेंज से कम अगर किसी दिन का हाई एंड लो रेंज बना है और वो स्पिनिंग टॉप है, डेफिनेटली वो कैंडल भी आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन के हाई या लो के नीचे जहां पर भी ब्रेकआउट मिलेगा, वहां पर पोटेंशियल मूवमेंट होने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है। दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। So till now, what we have discussed Marubozu candle, we have also discussed doji candles, we have also discussed spinning tops, and we have also tried making Marubozu candle on, this thing, on charting. Okay. Now, next one is called as, these are all single candlesticks which we are discussing as of now. ये सारे single candlesticks की identification है जो अभी तक हम find out कर रहे हैं। Now, एक और टाइप का होता है, और ये सारे चार्ट्स जितने भी टाइप की कैंडल्स हम देख रहे हैं, प्लीज रिमेंबर वन पार्ट, दे जो भी कॉन्सेप्ट आपको इनमें बता रहा हूं मैं, ये सारे डेली चार्ट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर इंट्राडे चार्ट्स। आपको इनको अप्लाई करना है, डेली चार्ट्स में अप्लाई करिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को इंट्राडे चार्ट्स पर लगाते हैं, शायद वहां पर थोड़ा दिक्कत ज्यादा आएगा आपको। इनफैक्ट वहां पर आपको शायद हो सकता है नंबर ऑफ टाइम लॉसेस भी आपको ज्यादा लग जाए, राइट? सो इसीलिए पॉसिबल, if possible, apply these concepts only on daily charts. Okay, now next one is spinning tops के बाद next one is called as downtrend hammer. हैमर क्या होता है? हैमर कुछ आपको इस टाइप का दिखाई देगा, जिसमें आपको शेडो पार्ट विल बी वेरी बिग। इनफैक्ट यू कैन से शेडो पार्ट इज डबल द साइज ऑफ बॉडी पार्ट। जो कैंडल का बॉडी पार्ट है, लेट्स से ये x है, सो यू विल बी फाइंडिंग दैट दिस शेडो पार्ट विल बी ग्रेटर देन 2x। क्लियर? इसे हम बोलते हैं हैमर। ओके, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसका इंपॉर्टेंस किस सेंस में है? नंबर वन, ये प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए पॉइंट नंबर वन, जो इनकमिंग ट्रेंड था, प्राइसेस का जो मूवमेंट था, वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा था।
फिर उसके बाद हुआ ये, एक इस टाइप का डेली चार्ट में आपको बहुत बड़ा हैमर फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसमें ओपनिंग प्राइस लेट्स से वाज एनीवेयर अराउंड हियर एंड प्राइसेस मेड अ वेरी बिग लो एंड देन फाइनली गेव द क्लोजिंग अबव द ओपनिंग प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज हैमर। हैमर कुछ इस तरीके का भी आपको दिखाई दे सकता है, हैमर कुछ इस तरीके का भी दिखाई दे सकता है, हैमर ऐसा भी दिखाई दे सकता है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर आप एक चीज, एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, दैट कलर मैटर नहीं करता यहाँ पर। हैमर अगर है, इट डेफिनेटली इंडिकेट्स एग्जॉशन ऑफ बायर्स, सॉरी, एग्जॉशन ऑफ सेलर्स, इट इंडिकेट्स एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। अगर आपको इस टाइप का हैमर आपको दिखाई देता है, दिस इंडिकेट्स एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। कैंडल भले ही रेड कैंडल हो, यू कैन लुक इट फ्रॉम दिस एग्जांपल। आप ये देखिए दैट प्राइसेस हैव ओपनड हियर एंड अल्टीमेटली मेड वेरी बिग लो, but still prices were able to give a closure near the opening price. So Raman is asking hammer होगा तो meaning time changed the trend? नहीं, देखिए hammer अगर बनता है तो रिवर्सल का पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाता है, दैट इज व्हाट वी से इन केस ऑफ हैमर। और उसके लिए कंडीशनैलिटीज हैं, वो कंडीशनैलिटीज आप सब लिख लीजिए। नंबर वन, देयर हैज टू बी इनकमिंग डाउन ट्रेंड, स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में पहले से लगातार नीचे गिरता होना चाहिए, नंबर वन। दूसरी चीज क्या है, आपको ऐसा डेली चार्ट में हैमर दिखना चाहिए, दैट इज नंबर टू। तीसरा चीज क्या आपको दिखना चाहिए, जो इस हैमर का हाई और लो रेंज है वो इसका 21 दिन की एवरेज डेली रेंज से ज्यादा होना चाहिए। इस दिन का रेंज 21 दिन का एवरेज डेली रेंज से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 21 डेज एवरेज डेली रेंज, इस दिन की रेंज। ओके, जैसे कि हमने रिलायंस का निकाला था 44 पॉइंट्स का रेंज, इस दिन का रेंज एटलीस्ट 60 टू 80 पॉइंट्स का होना चाहिए मिनिमम, हाई और लो रेंज। दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो अगर वो बड़ा रेंज आपको दिखाई देता है, दैट मीन्स ग्रेटर द conviction among buyers was there in this particular day in making the prices go down and ultimately give the closing back to the higher level। ये चीज अगर आपकी कंफर्म हो जाती है तो आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। अगले दिन अगर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल मिलती है तो उसमें अगर आप बाय करके चलेंगे, इस स्टॉक इस हैमर के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलने की। दिस इज क्लियर। एनीवन हु वांट्स टू फाइंड आउट हैमर, हैमर ढूंढना चाहेंगे आप? लेट्स जस्ट ट्राई एंड आइडेंटिफाई डाउन ट्रेंड हैमर। इनफैक्ट एक काम करते हैं, हैमर ढूंढने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। हैमर दोनों चीजों में मिल सकता है, एक अप ट्रेंड में भी मिल सकता है, आपको डाउन ट्रेंड में भी मिल सकता है, राइट। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया डाउन ट्रेंड में। जो अप ट्रेंड में हैमर होता है उसे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज टू बी अपसाइड मूवमेंट ऑफ प्राइसेस दैट शुड टेक प्लेस। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? हैमर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट the prices once they were moving up and up, then at any point of time the prices moved, opened, let's say gap up, they moved up, but selling came and ultimately selling को फिर दोबारा से absorption हुआ and ultimately prices were able to give a closing on the upper end. Now this one is also signifying very important thing, that is there was absorption of sellers. सेलर्स ने कोशिश करी बट देखो द फेलियर। इसके बाद क्या हो सकता है? probability should be there that prices should be able to keep on giving further upside move। बट यहाँ पर एक और चीज जानने की जरूरत है, हैंगिंग मैन बना है, इससे एक और चीज समझने की जरूरत है, दैट इज prices should be also next coming days, prices should also be able to give a closing above the high of this day। Why? Because यहाँ पर खुलते ही प्राइस यहाँ पर पहुंचा था तो उसमें एक अच्छी सेलिंग भी आई थी। सो अगले दिन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देगा या नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर कंटिन्यूएशन ऑन द अपसाइड, अदरवाइज प्राइस दोबारा से ऑक्शन करके नीचे यहाँ पर लोअर प्राइस को रीटेस्ट करने आ सकता है, राइट। दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। हैंगिंग मैन, सो जनरली आप हैंगिंग मैन और हैमर को रिवर्सल से कोरिलेट कर सकते हैं। जब भी हैमर या हैंगिंग मैन बने
तो हैंगिंग मैन बनना चाहिए अप ट्रेंड में और हैमर बनना चाहिए डाउन ट्रेंड में। और जब भी ये बनते हैं तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि रिवर्सल का पॉसिबिलिटी हाई हो सकता है। ओके, क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay. Last part of this single candlesticks that we are understanding as of now, this is called as shooting star or inverted hammer, right? Shooting star or inverted hammer आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? They are exactly opposite to the hammer. जो hammer में था body part that was available on the top of it, और जो body part है यहाँ पर वो आपका bottom part में available है. There is practically upper shadow is very big. And how much big should be this upper shadow? At least body part, if it is x, the shadow part should be greater than 2x of the body part. This is clear? This should also be clear to everyone. What does it indicate? It indicates that there should be a very high possibility for reversal that can take place among the prices. अगर अप ट्रेंड में आपको कुछ ऐसा हैमर बनता हुआ दिखाई देता है, this signifies that there should be a high possibility for रिवर्सल ऑन द डाउन साइड। व्हाई? बिकॉज अगर अपसाइड में मूवमेंट हो रहा था और ऐसे कोई कैंडल ऐसा बनता है आपका अपर इतना बड़ा शेडो बनाकर, और उसके बाद कुछ ऐसा बॉडी आपके लिए बना रहा है, सो इसमें जैसे ही अगर इस दिन के लो के नीचे कोई भी दिन अगर क्लोजिंग देगा तो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट की, राइट? दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपके लिए कि इस दिन का हाई और लो रेंज, रिमेंबर दैट दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन द एवरेज हाई एंड लो रेंज ऑफ पास्ट 21 डेज ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक, राइट? क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पर कर रहे हैं कोशिश हम, क्योंकि टाइम यहाँ पर थोड़ा सा कम रह गया गाइस, और हमारा सेशन हमें सिर्फ 1 ही घंटे का लेने हैं ना। अब आगे के जो जितने भी लेक्चर्स हैं, इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूँ आगे के ये जो जो भी पैटर्न्स हैं जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं, ये बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन एंड बुलिश हरामी, ये सारे पैटर्न्स आपको इनफैक्ट नेक्स्ट संडे हम कवर कराते हैं। आज हम कोशिश करते हैं इन्हीं पैटर्न्स को फर्दर फाइंड आउट करने की निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स के अंदर, एंड देखते हैं कि क्या हमें उससे कोई फर्दर फायदा मिल पाया या नहीं मिल पाया, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्री यहीं पर क्लिक करते हैं investing.com, एंड देन लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स, एंड यहाँ पर हमने रिलायंस का डेली चार्ट को फुल स्क्रीन कर देते हैं एंड इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दिया एंड कैंडलस्टिक्स में यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी दिस थिंग। ये चार्ट हमें कुछ दिखाई दे रहा है गाइस, रिलायंस का। रिलायंस पहले से अप ट्रेंड में चल रहा था एंड उसके बाद आपको ये जो कैंडल दिखाई दी है, ये कैसी कैंडल है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैन वी से दैट दिस इज इन्वर्टेड हैमर? शूटिंग स्टार बोलना है आप, शूटिंग स्टार बोल लीजिए, जो बोलना है वो बोल सकते हैं, राइट? और दूसरी चीज, इस कैंडल को देखकर हम ये बोल सकते हैं दैट दिस कैंडल इज हैविंग बॉडी पार्ट लेस देन, way lesser than the shadow part combined, right? लास्ट चीज जो अभी देखना रह गई है वो ये रह गई है, इसकी हाई और लो रेंज क्या थी? हाई लो रेंज आपको कहां से दिखाई देगी? वो आपको दिखाई देगी यहां से। ये आपको इस पोर्शन पर फोकस करिए जरा एंड कर्सर यहां पर लेकर जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हाई इज 2567.3, लो इज 2525.85। लेट्स डू दिस थिंग, इसको इनफैक्ट यही है। तो बेसिकली आप ये बताइए, क्या इसकी हाई लो रेंज कोई बहुत बड़ी रेंज बनाई है यहाँ पर? 2567, 2525.3 कोई बहुत बड़ी रेंज है? एवरेज रेंज तो इसकी 44 पॉइंट्स की है, दिस इज शोइंग अस 41 पॉइंट्स हाई लो रेंज, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ वेरी हाई रेंज। तो क्या ये हैमर हमारे लिए सिग्निफिकेंस कुछ कैरी कर रहा है? एग्जॉशन कुछ का सिग्निफिकेंस है इसमें कुछ बहुत बड़ा?
बताइए गाइस। नहीं, इतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं कैरी कर रहा है। व्हाई? बिकॉज अगर इसमें शेडो पार्ट बहुत बड़ा होता, डेफिनेटली वी वुड हैव सेड कि यहां से पॉसिबिलिटी रिवर्सल की बहुत हाई बन सकती है। लेट्स डू वन थिंग, और इसके अलावा ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आपको डोजी कुछ डोजी के अलावा ओपन इक्वल टू हाई एंड क्लोजिंग इज द हाईएस्ट, मैरोबुजो कैंडल इसमें अभी यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। बट व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, स्पिनिंग टॉप्स, मुझे मल्टीपल स्पिनिंग टॉप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बनते हुए। राइट, दीज आर लाइक, इधर से आप देखना शुरू करेंगे। पहले देर इज इनकमिंग ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन टू डाउन ट्रेंड, और उसके बाद आपको एक बड़ा सा बियरिश कैंडल दिखता है जिसमें 3 स्पिनिंग टॉप्स, देन गैप डाउन ओपनिंग एंड 4 मोर स्पिनिंग टॉप्स। और जैसे इन स्पिनिंग टॉप से आपको ब्रेकआउट दिखाई देता है, यू आर गुड टू लुक फॉरवर्ड फॉर क्रिएटिंग योर बाय पोजीशन। इनफैक्ट आपको बहुत पहले ही दिख जाएगा अगर आप इस स्पिनिंग टॉप का हाई और लो रेंज निकालेंगे। इफ इट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 44 पॉइंट, इनफैक्ट मैं यहीं से देख लेता हूं इसका हाई और लो रेंज कितना बन रहा है। लेट मी सी हियर, दैट इज 1916 माइनस 1890। लेकिन इससे पहले मुझे इसका हाई और लो रेंज पिछले 21 दिनों का भी ढूंढना पड़ेगा, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जैसे यहाँ पर है, आप देख रहे हैं गाइस, दिस इज ऑल्सो अनदर स्पिनिंग टॉप फॉर्म्ड हियर, प्राइसेस केम डाउन, एंड जैसे ही उसके बाद ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, प्राइसेस गिव अ रैली स्ट्रेट अवे बैक ऑन द अपर एंड ओनली। इस टाइप से आपको बहुत सारे आपको फॉर्मेशन दिखाई देंगे। स्पेशली अगर इस टाइप के फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिखाई देते हैं अराउंड एनी मेजर रिवर्सल पॉइंट, that is definitely an important good point for you to look forward for taking a trade। जैसे मैं इस हाई को अगर मार्क करूं यहाँ पर, इस हाई को यहाँ पर भी मार्क करता हूँ, अगर मैं चलूं और यहाँ पर अगर मुझे कुछ प्राइस आता हुआ दिखाई दे, दैट इज प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, देन साइडवेज, एंड देन फाइनली इधर प्राइसेस ने कुछ तो रुकावट की कोशिश करी, और आपके पास एक इनडिसिसिव, क्या मैं इसे डोजी बोल सकता हूँ? कैन आई से दैट दिस इज अ डोजी? राइट, और इस डोजी के हाई के ऊपर जैसे ही आपने किसी भी कैंडल ने अगले दिन जैसे ही प्राइसेस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, और मैं यहां पर कहीं पर इसके अगले दिन के बाद बाय करता हूं, क्या मुझे लॉस होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? मेरा रिस्क बनता है इस कैंडल स्टिक के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाने का, इतने का स्टॉप लॉस, और मैं टारगेट मिनिमम 1:2 1:3 रखकर चल सकता हूं। राइट, सो कैंडल स्टिक्स एक पार्ट हो गया स्टडी करना। दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है स्टडी करना, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो इन कैंडल स्टिक्स को आप हमेशा हर जगह अप्लाई करते रहेंगे तो वो आपको प्रॉफिट देने का प्रोबेबिलिटी कम रखेंगे, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अगर आप इनको अप्लाई करेंगे वहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी अगर हम ट्राई करके देखेंगे, लेट्स हैव अ लुक इनटू हियर आल्सो। इधर अगर आप अप्लाई करते हैं ये हाई, ये रिवर्सल पॉइंट्स को यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं, इधर आपको क्या ये कैंडल कुछ दिखाई दे रही है? बिग हैमर कैंडल एज वेल एज अ स्मॉल वेरी लो रेंज कैंडल, अ सपोर्ट जोन शोइंग अस अ बिग हैमर, और उसके ऊपर जैसे ही दिन अगर क्लोजिंग ने दे दिया उसके हाई के ऊपर, यहां पर आप अगर कॉल ऑप्शन बाय करके चलते हैं पोजिशनली, इतने का स्टॉप लॉस रख के, एटलीस्ट 3 दिन आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिल रहा है। गेटिंग इट? ये चीजें हैं जो आपको बेसिकली गाइज समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। आपको इन्हीं चीजों को बेसिकली अप्लाई करेंगे स्टॉक मार्केट में, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा। इसका अगर आप रिलायंस का देखेंगे तो देखिए, ट्रेंड लाइंस भी अगर चाहें तो रिलायंस का कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। रिलायंस का यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा, इसका इनकमिंग ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा था रिलायंस का,
और जो भी हाईएस्ट प्राइस मिल रहा था वहां से उसने रुकावट दी, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी रुकावट दी, फिर आया रुकावट दी, फिर आया डिमांड जोन पर, एंड उसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। तो ये तो डबल कॉन्फर्मेशन था आपके यहाँ पर बुल पोजीशन बनाने का। ओके, सो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे अगर स्टॉक मार्केट में अगर अपने लिए स्टडीज में प्राइसेस की मूवमेंट की स्टडीज के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली यू कैन गेन लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ understanding and profitability potential also. Okay, so that was basically all related to finding out some of the candlesticks using our basic understanding of candlesticks. नेक्स्ट वीक हम कोशिश करते हैं इन्हीं चैप्टर्स को फर्दर आगे आपके लिए और फर्दर जो अंडरस्टैंडिंग है इनको लेकर हम लाने की कोशिश करेंगे, आपको और समझाने की कोशिश करेंगे फर्दर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लेकर। ये था सिर्फ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपन हाई लो क्लोज ऑफ कैंडल्स एंड सम ऑफ द कैंडल फॉर्मेशन related to OHLC candles. Okay, so that's all from my side guys for today. If at any point of time, let me also do one more thing. Let me show you, registrations are open for our market profile course for next batch. Our next batch is starting from 7th of March 2022. If anyone is interested, they can join the course anytime they want. वहां पर हम इन डेप्थ इन डिटेल एनालिसिस करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, राइट? वहां पर आपको वो सारी चीजें दिखाई देती है। सर, राहुल जी इज आस्किंग हाई एंड लो रेंज शैल बी लेस देन 21 डे for spinning top. Yes, that is correct, sir. Less than 21 day average of 20 spinning top. That's correct, sir. Okay. All right. So those who are interested, they can do the part payment right now and enroll for our market profile course, which is starting from 7th of March. And इस कोर्स के अंदर हम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा फोकस करवाते हैं। Okay, so that's all from my side guys. For more details, if you want to ask us, you can drop us any query on 8851469399. Okay, so take care of yourself guys. Have a lovely weekend, and we will be meeting next weekend, and we will be having more and more learning on candlestick patterns. All right, take care, bye bye, have a lovely weekend.